I expect that our recording will start. So once again, good afternoon, friends. We'll be moving on to the next part of this unit number 1, which is regarding the various types and methods of irrigation. Depending on the source, we have discussed in short various classification or the types of irrigation in our earlier lectures. That is depending upon the source from which water is drawn. Source, again, the dams and reservoir, the ponds, or maybe from the river. Then depending on this source from the of the water, from which water is taken for the irrigation purpose, for part of the flow irrigation is further subdivided into three types. The one is direct irrigation, that is river canal irrigation. It is also called as, the diversion scheme. The second is storage irrigation, reservoir or tank irrigation. It is called as the storage scheme. And the third is combined storage and diversion scheme. As you can see on your screen, this is the schematic layout of the direct irrigation, river canal irrigation or diversion scheme. On the left top of your screen, you can see a blue hatched line moving from left to right. This is the river. And on this river, a small weir or a wall within the banks of the river, but it is within the banks of the river. Very important, within the banks of the river. This is called as either the weir or the barrage. Okay, is constructed. And this is generally on the perennial river, the river which is flowing for the 12-month or for maximum part of the year. These types of the structures are constructed, that is the direct irrigation structures, that is river canal irrigation or diversion scheme. Okay, as I have told you, Bhakra Nangal is the very good example, and there are certain numerous barrages which are constructed on your Wainganga river also. And also a good example just I wanted to mention again is on the river Pench. One is the dam, storage dam constructed across the river Pench at Totladoa, and at the downstream of the same river there is one barrage or a small dam is constructed at Parshuni, or it is also called as the Navegao Khairi Dam. You might have visited sometime or other, or we will visit in future. So what is there in these types of the dam, in these types of the weirs, in these types of the barrages? These weirs are made up either of the concrete with gates, or some weirs has only 100% water is obstructed with the gates. Okay, against the gates, and as the water is stored against the gates or against that small weir, which is called as the diversion weir, which is called as the barrage, which is called as the weir also. There are two canals at the left hand side and on the right hand bank of the river, considering the direction of the flow as the reference. नदी का बहने वाला पानी की जो दिशा है उसे रेफरेंस रखते हुए उस साइड में यदि हम खड़े रहे तो हमारे दाहिने साइड से जो नहर निकलेगा उसे कहते हैं राइट बैंक कैनाल, आरबीसी, और जो लेफ्ट साइड हमारे हाथ के बाएं साइड से जो निकलता है उसे एलबीसी करके कहते हैं. तो ये नदी में का पानी दोनों कैनाल से बाहर निकाला जाता है और खेतों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाता है. इसे डायरेक्ट इरिगेशन करके कहते हैं. ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम, again schematically the same thing has been shown. You can see there is a river flowing from top to bottom. A diversion weir is constructed, weir which is also called as in our Marathi as bandhara.
is constructed and act, this is again within the banks of the river. ओके, नदी के जो दोनों किनारे रहते हैं, नेचुरल जो बैंक्स रहते हैं जिसमें से नदी बहती है, वो दोनों बैंक्स को सिर्फ जोड़ा जाता है और उसमें एज अगेंस्ट द फ्लड द वाटर इज स्टोर्ड with the help of this weir or the gated weir, and the stored water is then diverted with the help of the right bank canal and the left bank canal to the agricultural farm for irrigation purpose. So this is in short a direct irrigation, also called as the diversion scheme or river canal irrigation. The another scheme is storage irrigation, wherein a big dam, a large dam, again on the left side top and right side bottom, you can see two schematic layouts of both the things. On the left side again, there is a dark blue line moving from left to right, that is showing the flow of the river, flow of the water in the river, and a wall. Now this is a wall or a dam constructed across the stream, is outside the banks of the river. नदी के जो दोनों पात्र रहते हैं, नदी के जो दोनों किनारे रहते हैं, उसके बाहर ये दीवारें आती है। ये कंक्रीट की भी रह सकती है या कुछ पार्ट कंक्रीट का या मैसनरी का रहते हुए बाकी जो है वो माटी का रहता है, अर्दन का भी रहता है ना। हमारा गोसीखुर्द प्रोजेक्ट है, बहुत सारे डैम आपने देखे होंगे, आपके भी एरिया में काफी ऐसे डैम्स है, और हमारे यहाँ 100% ऑलमोस्ट डैम्स आर लाइक दिस, दैट इज द कॉम्बिनेशन of the concrete or masonry as well as earthen dams. So these are called as the storage dams, or this scheme is called as storage scheme. This is also called as the storage irrigation, or also called as reservoir or tank irrigation. You must have got the difference between the two. The barrages and weirs are small dams or small obstructions across the river within the banks, and the dams or the big dams are nothing but the obstructions into the river or the walls constructed into the against the river flow, but which are outside the banks of the river, and they create large huge quantity of water in these reservoirs as compared to the barrages. बैरेजेस के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज्यादा पानी जमा किया हुआ रहता है, जमा होता है, और मेन पर्पस इसका ये है, दोनों में फर्क यही है कि बैरेजेस जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो 12 माह बहने वाले नदी के ऊपर और पेरेनियल रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन जो नदी 12 माह नहीं बहती या जहां पे बरसात का सिर्फ सीजन है 3 या 4 महीने, जिसमें हम एक्सेस वाटर स्टोर कर सकते हैं, और जो बाद में हम अगेन with the help of constructing these dams, creating the reservoirs against the dams, reservoir of water, huge reservoir of water like the sea, small sea, and again constructing the left bank canal and right bank canal, again on the left and right flank or the bank of the river. इसके ऊपर में से हम कैनाल निकालते हैं, धरण में से। धरण और कैनाल के बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है, जो दरवाजा जिसमें से पानी कैनाल को जाता है, उसे हेडवर्क करके कहते हैं, HEAD हेडवर्क, है ना कहीं तो भी यू मस्ट बी टेकिंग द नोट्स इन शॉर्ट इन योर नोटबुक. You make this habit so that you will be master of this subject, not only this subject but all the subjects. If you will make this habit of noting down. आप घर में बैठे हैं, अपने पलंग पे है, आराम से बैठे हैं, टेक के बैठिए, इतना रिलैक्सेशन पढ़ाई को आपको कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन हम स्टूडेंट है ये भूलना नहीं है, ठीक है. आवर स्टूडेंट लाइफ इज नॉट कंप्लीटेड, सो बी ए स्टूडेंट, बी ए एंथुजियास्टिक यंग गाइज. अपनी नोटबुक साथ में रखिए और सुनते सुनते नोट्स भी लीजिए, आपका ही बेनिफिट है. मैं 100% बताता हूँ. तो मैं आपको क्या बता, आरबीसी, एलबीसी लेफ्ट बैंक कैनाल लॉन्ग फॉर्म, आरबीसी राइट बैंक कैनाल. एलबीसी और आरबीसी जो रिजर्वायर में से पानी लेते हैं अक्रॉस द डैम, डैम में से कहीं तो भी उसको दरवाजा देना पड़ेगा हमें, तो वो जो स्ट्रक्चर रहता है जहां से डैम में से पानी रिजर्वायर का
लेफ्ट बैंक कैनाल या राइट बैंक कैनाल के माध्यम से खेतों को दिया जाता है, वो स्ट्रक्चर को HEAD हेडवर्क करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ नई बातें सीखी और हमने समझ लिया व्हाट इज स्टोरेज इरिगेशन। ऑन द राइट साइड आल्सो you can see at the bottom again a nice schematic layout from one of your good book, that is book of Mr. Punmia. Again I will repeat the things for the newcomers, that we have 3-4 nice books for irrigation engineering you can refer. One is a good book by Mr. BC Punmia, another is good book by Mr. Santosh Kumar Garg, SK Garg. Third is good book of irrigation engineering by Mr. Sahasrabuddhe. There are again numerous books, but out of these 3 books, you can refer anyone. You can refer the Punmia, you can refer the Santosh Kumar Garg or Sahasrabuddhe. Punmia generally referred by maximum of the students. So this is the schematic layout from the Punmia, where you can see that this is the river moving from top to bottom. The 2 banks of the river are shown, and the dam is constructed in the hatched line, it is shown. And this dam is, you can see, crossed both the banks of the river and is quite long. Okay, may be constructed of the concrete masonry called as the gravity dam. We will be learning in the future course. And some part of the dam, to make it economical, it is constructed out of the earthen or the soil known as the earthen dam. Okay, again both these dams we will be learning in detail in our next units to come. So the water or the reservoir is stored against these dams, huge water is stored. And then again the left bank canal and the right bank canal are there. There are 2 headworks, and again through these main canals there are again certain branch canals. Through these branch canals there are again distributaries, there are again minor canals, sub-minor canals, tributary canals, etc., which supplies the water to the tail end user, that is the farmer, काश्तकार, शेतकरी. ठीक है, अभी जो लास्ट इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन टाइप है, जो वाटर रिजर्वायर के which is described again in detail against the storage of the water, is the first 2 we have seen, that perennial type and inundation type. Then we have seen these 3, that is the direct diversion scheme, storage scheme, combination. This is the third one, combination of storage and diversion. Okay, on the same river, again the example of the Pench river you can visualize on your screen. Left side on top, there is a dam, huge dam is constructed at the top or at the upstream of the river, and a small barrage or the weir is constructed at the downstream of the river. Again, depending, there are huge considerations for this. It depends on the location of the sites, etc., and the utility. भाखरा नानगल, भाखरा ऐसे ही अपस्ट्रीम में है और नानगल डाउनस्ट्रीम में बैरेज है, फिर उसमें से कैनल्स निकलते हैं, है ना. जो इंदिरा गांधी कैनल है वो पूरा राजस्थान को हरा भरा कर दिया है उसने. तो द सेम वेयर ऑन द रिवर एट द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द रिवर, नदी के ऊपर में जैसे तोतलाडो में है, एक बड़ा भारी डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसके अगेंस्ट रिजर्वायर बनता है, बहुत बड़ा पानी जमा होता है, और नदी में ही डाउनस्ट्रीम में एक छोटा सा बैरेज ऑब्स्ट्रक्शन or the weir is constructed. Barrage may be gated barrage, ungated barrage, weir, and against this weir the water from the upstream reservoir or the dam when released is stored and is being used again with the help of the LBC and RBC when and where it is required. जहां जहां और जब जब पानी की जरूरत है तो ये हम कैनाल के माध्यम से सप्लाई कर सकते हैं. इस टाइप के इरिगेशन को कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोरेज एंड डाइवर्शन स्कीम करके बोलते हैं. अगेन फिर से पुनमिया के बुक में का ये स्केच है राइट साइड में, ये आपके नोट्स में भी है.
और इसमें आपको जैसे दिखता है कि नदी ऊपर से नीचे बह रही है, और बाद में ऊपर में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है, और नीचे में एक वेस्ट वियर है या बैरेज है। ऊपर के डैम में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड अगेंस्ट द रिजर्वायर, इन द रिजर्वायर अगेंस्ट द डैम, एंड एट द डाइवर्शन headwork or small barrage at the downstream, water is flown from the river to the barrage whenever it is required, and this required water is stored against this barrage or the weir, and is being then diverted with the help of the left bank canal or left main canal, right bank canal or right main canal। ये मेन कैनाल पानी निकालते हैं, और बाद में जो छोटे छोटे कैनाल होते हैं जिसके मेन कैनाल से निकलते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच कैनाल, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, उसमें से फिर और माइनर कैनाल, सब माइनर कैनाल, और बाद में सबसे आखिरी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सबसे आखिरी में खेती को जो पानी देता है वो कैनाल। ठीक है, फिर से एक अच्छा आपके एनपीटीईएल के नोट्स में से मुझे ये फोटोग्राफ मिला जो इसमें आपको दिख सकता है कि अपस्ट्रीम में स्टोरेज रिजर्वायर एंड डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे आपको बैरेज दिखेगा, और ये बैरेज में से यहाँ से कैनाल हेडवर्क के माध्यम से द वाटर इज टेकन आउट इनटू द कैनाल। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी विजुअलाइजिंग एंड सीइंग दिस ऑन योर स्क्रीन। ओके, ऐसा मुझे लगता है, और आपको समझने में ये मदद भी करेगा। अब बाद में ये इरिगेशन जो है इसकी टाइप्स हमने देखा अभी कि वी हैव सीन वेरियस टाइप्स, दैट इज द पेरेनियल, इनंडेशन, बाद में सबसे पहले तो फ्लो और लिफ्ट, और फ्लो को बाद में पेरेनियल, इनंडेशन, ये एक टाइप हो गया ड्यूरेशन के ऊपर में, और दूसरा स्टोरेज के ऊपर में हमने टाइप्स में देखा कि भाई डाइवर्शन और द डाइवर्शन टाइप इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोरेज एंड डाइवर्शन, ऐसा तीन देखा। अभी हम आगे में जाते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन कि एक्चुअली खेतों में कैसे पानी दिया जाता है। थोड़ा सा इसको हम बहुत है लेकिन इतना इसमें ज्यादा तो इम्पोर्टेंट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखते हैं वो है हमारे सिर्फ एग्जाम में आता है ज्यादा से ज्यादा नोट स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के बारे में, है ना। आप सब लोगों को मालूम है कि ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन आप कहीं ना कहीं देखते हैं। हमारे कॉलेज में भी आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन या फवारे से, या जिसको हम फाउंटेन्स बोलते हैं, तो वो फाउंटेन के माध्यम से एक इरिगेशन दिखेगा, यानी अगेन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। और स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी ज्यादा जो डेवलप्ड है जिसमें पानी का बहुत कम वेस्टेज होता है वो होता है सब सरफेस इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ये अभी हम आगे में पढ़ते जाते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। ये दो चीजें जो है स्प्रिंकलर और ड्रिप को हम ज्यादा महत्व देंगे। पहले सरफेस इरिगेशन के नेचुरल some surface irrigation methods we will see, and then we will go on to the further discussion। हमारे जो रेगुलर फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी हमारे यहाँ जो परंपरागत जिसको बोलते हैं खेती होते आ रही है, क्योंकि हमारे इंडिया में या भारत में बारिश काफी होती है, बारिश अच्छी होती है मैक्सिमम टाइम्स में, एक आधे बार ही एक आध साल कम बारिश होती है। तो हम क्या करते हैं, हम पानी का वी यूज द वाटर abundantly for irrigation purpose। We don't see that actually those crops or those plants need that much water। वो झाड़ों को वो जो प्लांट्स है उसको एक्चुअली बढ़ने के लिए उतना पानी लगता है क्या वो नहीं देखते, लेकिन हम खेतों में भरपूर पानी सप्लाई करते हैं, उसको सरफेस इरिगेशन के माध्यम से वी सप्लाई द वाटर। ओके, यू ऑल हैव लर्नड in your hydrology and water resources that loss of water, that precipitation water, rainfall water from the soil in the form of evapotranspiration, है ना। उस टाइम में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, evapotranspiration, बाद में पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, पीईटी और एईटी, है ना। मैंने ही आपको पढ़ाया होगा वो टाइम में, तो मैंने आपको बोला था
कि इसका यूज आपको बाद में इरिगेशन इंजीनियरिंग फाइनल ईयर को जब है तब इसका यूज आपको होने वाला है। तो हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, वी गिव दी सरफेस इरिगेशन टू मच, वी सप्लाई द वाटर। खेतों में हम पानी आइदर नदी में से हो, डैम में से हो, हमारे वेल में से हो, कुएं में से हो, ओपन वेल हो या हमारा बोरवेल हो, मस्त एबंडेंट खेतों को पानी हम बहा देते हैं उसमें। तो उसमें एक्चुअल प्लांट ग्रोथ को तो बहुत कम पानी लगता है, और ज्यादा पानी हमारा क्या होता है, इवापोरेशन लॉसेस में जाता है, एंड वी लूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो इसलिए क्या है कि अभी हमने स्लोली वेयर वी शुड मूव आइदर टू द स्प्रिंकलर इरिगेशन, या सबसे बढ़िया है ड्रिप इरिगेशन, कि बिल्कुल प्लांट्स के रूट्स को पानी देना। फिर भी ये जो मेथड्स में सरफेस इरिगेशन में जो वेरियस मेथड्स है, तो वो हम थोड़े से इन शॉर्ट देखते जाते हैं, और अगले लेक्चर में हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये यूनिट खत्म करते हैं। ठीक है, ये यूनिट का आधा पार्ट खत्म करते हैं, आधा तो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में चालू करते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये सरफेस इरिगेशन इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द फ्लडिंग मेथड, है ना, नाम ही है उसका फ्लडिंग मेथड, खेतों को फ्लड करना, खेतों में पानी छोड़ना। दूसरा है फरो मेथड और कंटूर फार्मिंग मेथड, है ना। हम देखते जाते हैं एक एक, थोड़ा सा 5-10 मिनट, आज हम लेट चालू किए तो 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। तो फ्लडिंग आपके कहीं तो भी नोटबुक में और नोट्स में तो दिया ही है, लेकिन एक आधे बार एग्जाम में इन शॉर्ट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स आपने देखा अभी, मेथड्स और टाइप्स में क्या फर्क है आपके ध्यान में आ गया। सो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में फिर से सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस एंड द स्प्रिंकलर मेथड्स इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सरफेस, सब सरफेस एंड स्प्रिंकलर। सरफेस इज अगेन सब डिवाइडेड into flooding method, furrow method, contour farming. Flooding method is again subdivided into wild flooding and controlled flooding. Controlled flooding is further subdivided into 6 parts, that is free flooding, contour, lateral flooding, border strip flooding, check basin flooding, zigzag method of flooding. Subsurface irrigation is further subdivided into 2 parts, नेचुरल सबसरफेस, आर्टिफिशियल सबसरफेस और स्प्रिंकलर। ठीक है, अभी सरफेस इरिगेशन के जो वेरियस मेथड्स है, इसकी लिस्ट तो हमने किया है, इसके नोट्स में आपको थियोरेटिकल पार्ट नोट्स मिलेगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्केचेस वी कैन सी वन बाय वन द वेरियस मेथड्स। बिफोर दैट we will try to understand which method is to be chosen, which method is to be adopted for irrigation purpose. काय के ऊपर वो डिपेंड रहेगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। द फर्स्ट इज द मेथड शुड बी सच दैट यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन with as small as 6 centimeter water depth application can be made for light irrigation. यानी हमारी इरिगेशन की मेथड या प्रोसेस इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि खेतों को कम से कम 6 सेंटीमीटर पानी की डेप्थ हम यूनिफॉर्मली सप्लाई कर सके। यानी समझो हमारे कम से कम कमजोर प्लांट है, जैसे सोयाबीन है जिसको कम पानी लगता है, कॉटन है जिसको कम पानी लगता है, धान को ज्यादा लगता है। तो धान को इसलिए हम वो बनाते हैं, वो खास पॉन्ड बनाते हैं उसके लिए, धान के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट धान वाले एरिया के हैं, तो आपको मालूम है। तो इरिगेशन मेथड ऐसी रहना चाहिए कि कम से कम 6 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ कैन बी अप्लाइड इनटू द फार्म यूनिफॉर्मली। एट द सेम टाइम यदि समय पड़ा तो इट शुड अफोर्ड हेवी यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड टू द एग्रीकल्चर, टू द फार्म। ओके, खेती में 6 सेंटीमीटर से लेके तो 20 सेंटीमीटर तक के पानी की सप्लाई डेप्थ में करते आना चाहिए।
यही को हम आगे में पढ़ने वाले हैं, इसको डेल्टा करके कहते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि द डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड टू द फार्म फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज इन डेप्थ, यानी समझो 1 एकड़ खेती है, 1 हेक्टर है, तो 1 हेक्टर में 6 सेंटीमीटर डेप्थ वाटर, 2 हेक्टर है, 3 हेक्टर है, 50 हेक्टर है, 100 हेक्टर है, जो भी है। सो हेक्टरेज इज द एरिया और द एकड़ इज द एरिया एंड द डेप्थ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एरिया, एरिया में उतने डेप्थ का पानी 6 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर तक के यूनिफॉर्म, नहीं तो एक जगह ज्यादा दूसरे जगह कम, ऐसा नहीं। सभी खेती में एक साथ 6 से लेके 20 सेंटीमीटर तक पानी देना चाहिए। It should allow use of large concentrated water flows for the reduction of conveyance losses and labor cost. ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसी रहना चाहिए कि इसमें जो हम पानी ले जाते हैं, कैनाल से ले जाते हैं, पाइप से ले जाते हैं, या कोई और दूसरे मेथड से ले जाते हैं, तो इसमें कन्वेयंस लॉसेस, एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना, कैनाल से ले जाते हैं तो उसमें परकोलेशन लॉस है, इवेपोरेशन लॉस है, कुछ कुछ लॉस जो है वो वेलोसिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि रफनेस ऑफ द कैनाल सरफेस है ना, याद कीजिए रूगोसिटी कोएफिशिएंट, रफनेस कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं। तो ये लॉसेस कम से कम हो और ये माध्यम में लेबर कॉस्ट कम से कम लगे। इट शुड बी सुटेबल फॉर यूज विथ इकोनॉमिक कन्वेयंस स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिकल रहना चाहिए हमारी जो सिस्टम है वो। इट शुड बी सच दैट मैकेनाइज्ड फार्मिंग इज फैसिलिटेटेड, है ना। धीरे धीरे कैसा है, हमारे यहाँ लेबर प्रॉब्लम आ रहा है, आप सबको मालूम है। खेतों में काम करने के लिए लेबर की अवेलेबिलिटी अभी कम होते जा रही है, तो इसीलिए हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारी मेथड्स ऑफ द इरिगेशन शुड बी सच दैट वी शुड डू द मैकेनिकल फार्मिंग। ठीक है, सो गुड इरिगेशन मेथड रिजल्ट्स इन इंक्रीज यील्ड and conservation of resources with soil productivity maintained and water utilized economically। तो अच्छी इरिगेशन मेथड कौन सी है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें प्राप्ति मिले, हमारे धान्य बहुत ज्यादा हो, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस है पानी के वो कम से कम यूटिलाइज हो, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस, जमीन की प्रोडक्टिविटी कम ना हो और वाटर यूटिलाइज्ड इकोनॉमिकली। ज्यादा यदि हमने इरिगेशन किया, ज्यादा पानी दे दिया है खेतों को, ओवर इरिगेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, जमीन हमारी सुपीकता कम होती है, फर्टिलिटी बह जाती है जमीन। सो ओवर इरिगेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स, है ना, लीचिंग ऑफ कंक्रीट आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो लीचिंग ऑफ कंक्रीट, एफ्लोरेसेंस वगैरह पढ़ा है आपको, वही है पंडा यहाँ लगा है कि लीचिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। खेतों में हम जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, इसलिए बोलते हैं ना केमिकल फर्टिलाइजर कम से कम यूज कीजिए। यूरिया देते हैं और बहुत सारे और बाकी फास्फोरस वगैरह सभी देते हैं, बहुत सारे, आपको, आप सब लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम है। तो वो फर्टिलाइजर जो है वो पानी के साथ बहते हैं और पानी के साथ बह के जमीन में से कहीं से तो भी बाहर आते हैं और सफेद सफेद जमीन दिखती है, उसको लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर बोलते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर दिया तो वो जमीन नापिकी की हो जाती है, इट डज नॉट yield the crops, that type is called as leaching of fertilizers, and this is due to the over irrigation, soil irrigation, soil erosion, leaching of fertilizer, ड्रेनेज ट्रबल यानी फिर से वाटर लॉगिंग, और सॉल्ट एक्यूमुलेशन, जमीन में का जो सॉल्ट रहता है, यानी वो फिर से लीचिंग का ही प्रकार है, वो होता है ओवर इरिगेशन के कारण। अभी मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पे रुकते हैं या थोड़े 2-3 कंसिडर कर लेते हैं। अनकंट्रोल्ड और द वाइल्ड फ्लडिंग, टाइप ऑफ द वाटर सप्लाई, वी हैव सीन द फ्लडिंग। तो पहला यानी एकदम वाइल्ड टाइप की मेथड है, अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग, उसका नाम ही है कि कुछ नहीं, खेत है, फ्लैट जमीन है, उसमें पानी छोड़ देने का,
और जमीन जब गीली हो जाती है, एक हाथ जिसको हम डायवर्शन में या वो फ्लडिंग मेथड करके देखा था, फ्री फ्लडिंग, के नदी में जब फ्लड रहते हैं, स्ट्रीम में पानी रहता है, तो उसमें का पानी खेतों में डायरेक्ट डाइवर्ट करना, जमीन को गीली करना, और गीली करने के बाद में उसमें का पानी छोड़ देना, बाहर निकालना, और उसमें फिर हमें जो सोइंग या जो बीजों का रोपण करना है या जो प्लांट्स लगाना है उसको उसमें बढ़ाना या लगाना. So this is nothing but the wild flooding or the uncontrolled. Free flooding or flooding from field channels, यानी ये हम जनरली हमारे खेतों में करते हैं, जिसको कंट्रोल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं. कि छोटे छोटे जो फील्ड चैनल्स रहते हैं, मैंने आपको कैनाल सिस्टम इन शॉर्ट थोड़ा बताया था कि हमारे डैम में से जो बड़े कैनाल निकलते हैं उसे मेन कैनाल करके कहते हैं, उसमें से छोटे कैनाल निकलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल करके कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में से फिर सब, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटरी में से ब्रांच कैनाल निकलते हैं, ब्रांच कैनाल में से सब ब्रांच में से मेन, सब ब्रांच में से माइनर कैनाल, और माइनर से सब माइनर, और सबसे आखिरी में फील्ड चैनल है ना. कहीं तो भी आपने नोट किया होगा, मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ब्रांच कैनाल, सब ब्रांच, माइनर कैनाल, सब माइनर, और सबसे आखिरी में फील्ड चैनल, जो खेतों में हमारे पानी हम बनाते हैं ना, खेतों में जो नालियां बनाते हैं, फील्ड चैनल्स, बांधिया वगैरह बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज. तो अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड फ्लडिंग में विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड चैनल वी ब्रिंग वाटर टू द लैंड, और बाद में खेतों को गीला करने के बाद में फिर उसमें से एक्सेस वाटर जो है वो हम फिर से ये चैनल से कहीं तो भी बाहर नदी नाले में छोड़ देते हैं. ये करते वक्त हम थोड़ा ग्राउंड का टोपोग्राफी में कैसा स्लोप है वो सभी चीजें देखते हैं. भले ही हम इंजीनियर नहीं होते हैं, फार्मर काश्तकार कोई इंजीनियर नहीं होता, लेकिन उसे समझता है पानी एक जगह से दूसरी जगह कहाँ बहता है, वो हिसाब से वो खेतों में नालियां बनाता है, और उस हिसाब से वो खेतों को फ्लडिंग करता है या झाड़ों को खेतों में पानी देता है. तो ये इसके जो वेरियस अदर मेथड है, फ्री फ्लडिंग, कंटूर लैटरल, बॉर्डर स्ट्रीप, चेक फ्लडिंग, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. आज हम यहाँ रुक जाते हैं. नेक्स्ट टाइम द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टुडे वी विल टेक द ब्रेक हियर.